वजीर पवंगोलती सरियानिवास ने अवाम से अपील की है कि वो इंदिरा हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक किसी भी बदउनवानी की फौरी इत्तला दें। उन्होंने जोर दिया कि हाउसिंग डिपार्टमेंट को शफाफियत के साथ काम करना चाहिए, जैसे खालिस 24 की रात सुना। उन्होंने कहा कि महकमा में करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हर कदम पर दयानतदारी और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। ఏదైతే ఈనాడు సెలక్షన్ జరుగుతుందో మీరు వెళ్ళేసరికి సెలక్షన్ లిస్ట్ రెడీగా ఉంటుందో సెలక్షన్ లిస్ట్లో మీరు ఐడెంటిఫై చేసి తప్పు ఉందని చెప్పినా ఈవెన్ కలెక్టర్ గారు అప్రూవ్ చేసినా దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేది అవుట్ రైట్ డెసిషన్ నేను తీసుకున్నా. ఎస్ ఏడిచ్చింది తప్పు ఉంది సార్, ఇతను భూమి ఉన్నోడు, ఇతను డబ్బులు ఉన్నోడు, ఇతనికి మనోళ్ళు ఏదో లోపాయకారి ఒప్పందం చేసుకొని ఇల్లు ఇచ్చారు అని ఒక నా చెల్లినో ఒక నా తమ్ముడో ఎస్ ఇక్కడ తప్పు జరిగిందని మీరు నాకు జస్ట్ మీకు నా డైరెక్ట్ ఒకటి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇస్తాను. మీరు చిన్నది పాస్ ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ మీ పేరు కూడా బయట చెప్పను. నా సెక్రటరీ చెప్పినా, నా ఎండి చెప్పినా, నా ఈఎన్సీ చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా సరే డైరెక్ట్గానే నాది ఫోకస్ ఉంటుంది. పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్, చిన్న అవినీతి కూడా జరగకుండా 24 క్యారెట్ గోల్డ్ అంటే ఎంత దానికి మార్కెట్లో వెయిట్ ఉంటుందో అలాగా ఈ హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి మీరు ఒక మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా. कांग्रेस ने माजी में पाल उमूर के आबपाशी मंसूबों को बरसों तक इल्तवा में रखा। केसीआर ने 4000 करोड़ रुपए खर्च करके इन मंसूबों को फाल बनाया और 8 लाख एकड़ जमीन को पानी फराहम किया। पौलामुर्निगा रेडी प्रोजेक्ट 80% मुकम्मल हो चुका है और ट्रायल रन के दौरान पानी भी आ चुका है। सिर्फ पैकेज 3 के तहत 4-5 किलोमीटर राहें साफ करके नहर मुकम्मल की जाए तो इस बारिश के मौसम में 50 टीएमसी पानी पाल उमूर को मिल सकता था। क्या कांग्रेस हुकूमत के पास 1.5 साल में चंद किलोमीटर नहर खोदने की भी सलाहियत नहीं? अब 65 टीएमसी पानी आंध्रा को जाने दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं केसीआर को क्रेडिट ना मिल जाए। రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఎట్లుంటుందంటే ఏ పని చేసినా సగం సగం ఆగమాగం, ఏది పురాగా కొనేలేదు. రుణమాఫీ సగం కూడా కాలే, రైతు బంధు పావుల వల్లే, మూసి ముట్టుకొని దాన్ని వదిలిపెట్టిండ్రు, హైడ్రా ముట్టుకొని చేతులు కాల్చుకొని దాన్ని ఇడిచిపెట్టిండ్రు. ఏది చూసినా సగం సగం ఆగమాగం. ఈ చంద్రబాబు రాజశేఖర రెడ్డిల పుణ్యం దశాబ్దాల తరబడి పాలమూరు జిల్లాలో ప్రాజెక్టులు పేరు మారిపోయింది. దాని ఎవడు కల్వకుర్తి, నెట్టంపాడు, భీమా, కోయిల్ సాగర్ అంటలేరుగా. వాటి పేరే పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు. ఆ పేరు ఎవరు తెచ్చిండ్రు? ఇదే ఘనత వహించిన కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశంలో పుణ్యం. ప్రాజెక్టుల పేరు మర్చిపోయినరు. పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలని పాదయాత్ర, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలని నిరాహార దీక్ష. ఈ ఎన్నికల్లో మేము గెలిస్తే పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామనే కాడికి వచ్చింది కథ. ఆ పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను నిరంజన్ అన్న ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ గా, లక్ష్మారెడ్డి గారు మంత్రిగా, నేను నీటిపారుదల మంత్రిగా ప్రాజెక్టు సైట్ల దగ్గర నేల మీద జంప్కాన్ వేసుకొని పండుకున్నాం. మేము ఆడ పనిచేసినాం. పరుపులు వేసుకోలే, మంచాలు వేసుకోలే. మేము జంప్కాన్ వేసుకొని మేము ప్రాజెక్ట్ సైట్లలో పండుకొని రాత్రింబవళ్ళు పనిచేస్తే ఇవాళ పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను రన్నింగ్ ప్రాజెక్టులుగా మార్చి 4000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 8 లక్షల ఎకరాలు ఆ వలసల జిల్లా పాలమూరు జిల్లాకు నీళ్లిచ్చింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. అది మనం సాధించింది. పాలమూరు రంగారెడ్డి 80% పూర్తయింది. ట్రయల్ రన్ అయిపోయింది. నీళ్లు వచ్చినాయి బయటకు. కేవలం ప్యాకేజ్ 3లో రాళ్ళు వచ్చినాయి కొద్దిగా. ఒక 3-4 కిలోమీటర్లు ఆ రాళ్లు బ్లాస్ట్ చేసి కెనాల్ త్రూ చేయాలి అంతే. టనల్ అయిపోయింది, పంప్ హౌస్ అయిపోయింది, సబ్ స్టేషన్ అయిపోయింది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ. జస్ట్ 4-5 కిలోమీటర్లు ఆ రాళ్లను బ్లాస్టింగ్ చేసి కాలువ త్రూ చేస్తే పాలమూరు జిల్లాలో 50 టీఎంసీల నీళ్లు మనం నింపుకునేది ఉండే వానాకాలంలో. ఏడాదిని అర్థమైంది 3-4 కిలోమీటర్ల కాలువ తవ్వ చేత కదా ఈ ప్రభుత్వానికి. ఆ 3-4 కిలోమీటర్లు ప్యాకేజ్ 3లో కాలువ తవ్వి ఉంటే నాగాపూర్ రిజర్వాయర్లో 8.5 టీఎంసీలు, ఏదుల్లో 6.5 టీఎంసీలు, వట్టెంలో 16 టీఎంసీలు, కర్వెనలో 17 టీఎంసీలు, మొత్తం 50 టీఎంసీల నీళ్లు మనం నిలుపుకునే అవకాశం ఉండే కదా. మీకు తెలివి లేక నీళ్లు వాడక 65 టీఎంసీలు ఆంధ్రాకి ఎక్కువిస్తారు ఈ సంవత్సరం. ఇంకా 2 ఏళ్ళు అంటుండు. ఏంది వాళ్ళ ఉద్దేశం? జల్లి పూర్తయితే అంతా కేసీఆర్ చేసిండు అనుకుంటారని ఓ 2 ఏళ్ళు వడబెట్టి మళ్ళీ నిన్న ఉత్తమ్ పోయి ఇంకా 2 ఏళ్లకు చేస్తారట మెల్లగా. ఆడ ఉన్న పని ఏంది? గట్టిగా చేస్తే 4 రోజుల పని ఉండదు. 4 రోజులు గట్టిగా చేస్తే 50 టీఎంసీలు పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకంలో నింపుకునే అవకాశం ఉంది. దాన్ని ఇలా పండబెట్టి అన్యాయం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉండదు. ఆ రోజు ఎన్ని కేసులు వేసినా ఏమేసినా పాలమూరులో
असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के बहादुरगंज जलसे में पेलगाम दहशतगर्द हमले के शुहदा को खराजन अकीदत पेश किया। अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के जिला किशनगंज के बहादुरगंज में मुनक्किदा अपने जलसे के दौरान पेलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के शुहदा को खराजन अकीदत पेश किया। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान शुहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और उनके अहल खाना से इजहार यकजहती किया। ओवैसी ने इस मौके पर कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। पेलगाम दहशतगर्द हमले ने मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है और ओवैसी का ये इक़दाम मुतासरीन के साथ हमदर्दी और कौमी यकजहती की अलामत समझा जा रहा है। आप और हम जानते हैं कि हमारे वतन अजीज में कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हमारे भारत के नागरिक जो वहां पर पहलगाम में बहैसियत एक मुसाफिर या टूरिस्ट गए थे, पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको, महिलाओं को, खवातीन और बच्चों को अलग किया, मर्द लोगों को अलग करके मजहब पूछकर, और जब उन्होंने अपना नाम और मजहब हिंदू बताया तो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये ऐसा दर्दनाक वाकया है कि हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें वो नाकाफी होगा। हम कम से कम बहादुरगंज में आज उन तमाम मरने वालों के लिए इज़हार ताज़ियत के तौर पर हम 1 मिनट की खामोशी मनाएंगे और उसके बाद मैं अपने मौजू पर आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेलंगाना हाई कोर्ट में आज से गर्मियों की ततीलात हंगामी मुकदमात के लिए खुसूसी बेंच कायम। तेलंगाना हाई कोर्ट में आज से गर्मियों की ततीलात का आगाज हो गया है, जो 6 जून तक जारी रहेंगी। ततीलात के पेश नज़र अदालत की जानिब से अहम और हंगामी नौयत के मुकदमात की समाअत के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। हाई कोर्ट ने 5 खुसूसी बेंचों का क़याम अमल में लाया है, जो ततीलात के दौरान फौरी नौयत के मुकदमात की समाअत करेंगे। अदालती हुक्काम का कहना है कि इन खुसूसी बेंचों की तश्कील का मकसद अदालती काम में तसलसल बरकरार रखना और अवाम को बरवक्त इंसाफ फराहम करना है, जबकि मामूल की कार्रवाइयां ततीलात के बाद दोबारा शुरू होंगी। GHMC कमिश्नर RV करना ने शीलेपा लेआउट फ्लाईओवर फेज 2 के कामों का मुआयना किया, जो मिलकम चिरोव गुची बावली से कुंडापुर तक फैला हुआ है। उन्होंने केजागाड़ा जंक्शन पर नए फ्लाईओवर और अंडरपास के मुजव्वजा मकाम का भी जायजा लिया। मिलकम चिरोव के दौरे के दौरान वाकर्स ने सफाई और आवारा कुत्तों के मसाइल की निशानदेही की, जिस पर कमिश्नर ने फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। कमिश्नर ने फ्लाईओवर का खुद पैदल जाकर मुआयना किया और काम इसी माह मुकम्मल करने पर जोर दिया। तेलंगाना में ड्राइविंग टेस्ट को मजीद सख्त बनाने के लिए 18 RT इवज में सिम्युलेटर्स मुतारफ कराए जा रहे हैं। अब उम्मीदवारों का सिर्फ सादा ट्रैक पर नहीं, बल्कि सिम्युलेटर्स पर भी इम्तिहान लिया जाएगा, जो असली ट्रैफिक, मौसम और सड़क के हालात की नकल करते हैं।
कैमरे उम्मीदवारों के चेहरों के तासुरात का जायजा लेकर दबाव में उनके रद्द अमल का तज्जिया करेंगे। ये अक़दाम रोड हादसात में इजाफे के बाद किया जा रहा है, जिनकी एक बड़ी वजह गैर माहिराना ड्राइवर्स को ब्रोकरों के जरिए लाइसेंस मिलना है। नए टेस्ट प्राइवेट एजेंसियां चलाएंगी और आमदनी की तकसीम का मॉडल अपनाया जाएगा। इस इस्लाह का मकसद सिर्फ उन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना है जो वाकई काबिल और महफूज ड्राइवर हों। साइबर फ्रॉडियों के जाल में फंसकर बीटेक का तालिब इल्म 8 लाख गंवा बैठा। हनमकुंडा जिला के कमलापुर मंडल के अलिफापुलापली गांव से ताल्लुक रखने वाले नौजवान को 16 तारीख को एक व्हाट्सएप पैगाम मौसूल हुआ। पैगाम में दी गई हिदायत के मुताबिक होटल्स को रेटिंग देकर बाद में टेलीग्राम पर मुख्तलिफ टास्क्स मुकम्मल करता गया। फ्रॉडियों ने बाद में क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी पर मुनाफा का लालच दिया, जिस पर तालिब इल्म ने पहले लगाया अच्छा मुनाफा दुखाकर उसका एतमाद जीत कर आहिस्ता आहिस्ता 83,500 की सरमायाकारी करवा ली। रकम वापस न मिलने पर आखिरकार नौजवान को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उसने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया। GHMC के सर्किल 14 में एक सेक्शन ऑफिसर पर हाथ उठाने का वाकया पेश आया, जिसमें जिम्बाग के बीजेपी कारपोरेटर राकेश जिशवाल और कांग्रेस लीडर प्रकाश रेड्डी मुलव्वस है। अफसर पर हमले के खिलाफ एहतजाजन GHMC मुलाजमीन ने ड्यूटी का बाइकआउट किया और मुजाहरे में शामिल हुए मुलाजमीन ने सवाल उठाया कि एक कारपोरेटर को किस तरह सरकारी अफसर पर हाथ उठाने की जुर्रत हुई। सर्किल 14 के दफ्तर को ताला लगाकर मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कारपोरेटर के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात लेने का भी मुतालबा किया गया। నేను సర్కిల్ 14 గోషామైల్ ఏసీపీని. నా పేరు మంజులా సింగ్. నా ఆధ్వర్యంలోనే వాళ్ళు వచ్చి దౌర్జన్యం చేసి నా సెక్షన్ ఆఫీసర్ని మున్షిని కొట్టిండి. 5 మంది కట్టల మండి నుంచి 5 మంది వచ్చిండ్రు. వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చిండ్రు, మాట్లాడిండ్రు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఈయన లోపలికి వచ్చి మామూలుగా నార్మల్గానే మాట్లాడుతున్నాడు. మాట్లాడుతా మా సెక్షన్ ఆఫీసర్ని పిలువమంటే పిలిచినాము. లోపలికి వచ్చిండు. లోపలికి రాగానే ఆ బల్గార్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుకుంటా చేతులు లేపిండు. మున్షి దగ్గరికి వెళ్ళిండు. మున్షిని పిలిస్తే మున్షి లేడు, వేరే మున్షి వచ్చి ఆయనను కూడా కొట్టిండు. మళ్ళీ బయటికి పోయి కొట్టిండు. చాలాసేపు వాళ్ళు బయటనే వెయిట్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ కొట్టాలని. రాకేష్ జైస్వాల్ ఇంకా 5 మంది కట్టులు మంటోళ్ళు, ఇంకొక ఆయన ప్రకాష్ రెడ్డి అంట, కాంగ్రెస్ లీడర్. మేము కంప్లైంట్ చేయలే, వాళ్ళే మేము కొట్టినాం అనేసి వాళ్ళే మా మీద పోయి హ్యాబిట్స్ పిఎస్లు ఇచ్చిండ్రు. సిఐ ఇంకా వాళ్ళు వచ్చిండ్రు. ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చిండ్రో వాళ్ళ కంప్లైంట్ లెటర్ తీసుకొని మేము ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం. లేదండి. न हुकूमत हिंद ने कौमी सलामती और अवामी मुफाद के पेश नज़र पाकिस्तान से हर किस्म की तिजारती दरामदात पर फौरी और मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी न सिर्फ बराह रास्त दरामदात बल्कि भारत के रास्ते तीसरे ममालिक को भेजी जाने वाली अशिया पर भी लागू होगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए वाज़ेह किया कि अब पाकिस्तान से कोई भी शय दरामद बरामद नहीं की जा सकती। ये अक़दाम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम के साथ नाफिज किया गया है ताकि इस पर मुअस्सिर अमल दरामद हो सके। इस फैसले के बाद किसी भी इस्तिस्ना के लिए हुकूमत से पेशगी इजाज़त लेना लाजमी होगा। ये अक़दाम हालिया पेलगाम दहशतगर्द हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ताल्लुकात में बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में सामने आया है। कर्नाटक के कांग्रेस वजीर ज़मीर अहमद ने एक कि अगर उन्हें बम दिया जाए तो वो पाकिस्तान पर खुदकुश हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर जंग हो तो वो तैयार हैं। ज़मीर अहमद ने कहा, मोदी और अमित शाह अगर मुझे एक खुदकुश बम दे तो मैं अपने जिस्म से बांध कर पाकिस्तान पर हमला करने निकल पड़ूंगा। उन्होंने ये बयान हो बलवतानी के जज्बे से उनका कहना है कि मुल्क के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये बयान सोशल मीडिया ನಾವು ನಾನು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ನಮಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಸ್ ಎ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ. ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಡೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುವ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ. ಬೇಕಾದರೆ ಸುಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಪನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಕೇಳಿಲಿ, ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ನಾನು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಗತಿ ಇದ್ದರೆ ಸುಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಆಣೆ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಡಿ.
गाजुलारामिरम और HAL कॉलोनी में तमीरात मुनहदिम रेवेन्यू हुक्काम की कार्रवाई। मीरचल कुतबल्लापुर हुदूद में वाक़ गाजुलारामिरम और HAL कॉलोनी में रेवेन्यू हुक्काम ने गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मकानात को मुनहदिम कर दिया। हुक्काम के मुताबिक ये तमीरात बगैर किसी इजाज़त या कानूनी मंजूरी के की गई थी। इस इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान मकामी रिहायशियों में शदीद गम और गुस्सा देखा गया। कई अफराद का कहना था कि उन्हें पेशगी कोई इत्तला नहीं दी गई और अचानक बिल्डोजर्स के साथ एहलकार पहुंच गए। रेवेन्यू हुक्काम का मुअक्किफ है कि ये कार्रवाई इलाका में गैर कानूनी कब्जों और तमीरात के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है। उनका कहना था कि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। कुछ देर के लिए माहौल कशीदा हो गया था, ताहम पुलिस की मौजूदगी से हालात पर काबू पा लिया गया। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि इस तरह की कार्रवाइयां आइंदा दिनों में दीगर इलाकों में भी जारी रहेंगी। అడుగుతున్నారు సార్ లోకల్ రాజకీయ నాయకులు గుడి అప్పచెప్పేయమంటున్నారు సార్ రాజకీయ నాయకులు సార్ మాకు చిన్న చిన్న అంటే మాకు సపోర్ట్ చేస్తలేరు చిన్న చిన్న వాళ్ళ పేర్లు కావాలంట ఈడ ఇల్లులు కూల కొట్టుకొని ఈ రోజు రెండు నా పేరు పెట్టలేదేంది మీ కమిటీలో నా పేరు పెట్టలేదేంది అన్ని రాజకీయం ఆడి ఇవన్నీ అటాక్ చేసింది సార్ రాజకీయ నాయకులు ఇది ధార్మికంగా నడవాలి సార్ మాకు పర్మిషన్ పిల్లల పైన భరోసా వేసుకోవద్దని దుకాణం పెట్టుకుని కొబ్బరికాయలు అమ్ముకుంటుంటే ఆ కొబ్బరికాయల దుకాణం కూడా ఎరగొట్టారు. ఫ్యాన్లు గీళ్ళు అన్ని ఖరాబ్ చేసారు సార్. మాకు ఒక్క రూపాయి గిట్ట లాభం కాలే, అన్ని ఖరాబ్ చేసారు. మా అందరూ కాదు ఫైన్ కెలోడే మబ్బుల సాటర్డే కొబ్బరికాయలు నీళ్ళు అమ్మే దుకాణం కూడా కొట్టింది సార్. ఏ దుకాణం నేను ఎగ్గాలో ఉంటున్నాడు, నా గుడి అంతా నా గుడ కొట్టిండు, నా దుకాణం కూడా కొట్టిన్నాడు. సరికోండి ఈ బిల్డింగ్లు కట్టి ఈ మొత్తం బర్మలు పెట్టి కూలిపోయినాయి సార్. గోడలు కూలిపోయినందుకు పాత గోడలు సార్. సార్ ఇంకోటి చూపిస్తా సార్. ఇదిగోండి సార్ పాతిల్లే సార్. ఇది పాతింట్లో సెల్ఫ్లు అక్కడే ఉన్నాయి. ఇదే పాత ఇల్లు ఈడు రాకుండా సార్ గులగొట్టడం. ఈ ఇంటిని మొత్తం ఇట్లున్నా ఇంటిని మొత్తం సిఐకి కాళ్ళు మొక్కి అడిగిన పాత ఇల్లు కూల్చి కడుతున్నా. सूर्यापेट जिला के चुंतला पालम मंडल में मुनक्किदा उबे भारती आगाही इजलास के दौरान एक किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। किसान दंगल नागरजू ने इल्जाम लगाया कि इसकी जमीन पर कब्जा हो गया है, मगर हुक्काम ने इसकी शिकायत को नजरअंदाज किया। मायूसी में वो अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल अपने जिस्म पर डालकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने फौरी अलर्ट हैकर किसान को वहां से हटाकर काबू में लिया। इसी इजलास में एक खातून किसान भी कीले मार दवा की बोतल के साथ आकर हुक्काम को धमकाने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों किसानों को हिरासत में ले लिया और मामले की तहकीकात कर रही है। बीवी ममता को बच्चे न होने और जहेज के लिए मुसलसल हरासानी का शिकार करके शौहर महिंदर ने इसे फांसी पर लटकाकर कत्ल कर दिया। शौहर, सास, ससुर और दीगर अहलखाना की तरफ से मुसलसल दबाव और अजियतें दी जा रही थीं। महिंदर ने अपनी बीवी को घर ले जाकर 24 तारीख को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद महिंदर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि बीवी लापता है।
मकामी लोगों ने महिंदर के घर से बदबू आती महसूस की और शक की बना पर पुलिस को इत्तला दी। मामाता की लाश बदबूदार हालत में बाहर मिली और कोडिमिया पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मौजूदा दौर में जहेज के लिए हरासानी आम होते हुए भी हरियाणा के करकशीतर में वकास राणा नामी दूल्हा ने एक मिसाली कदम उठाया। शादी के मौके पर ससुराल वालों की जानिब से दिए गए 31 लाख रुपए के जहेज को वही मंडप पर ही वापस कर दिया। दूल्हा ने कहा कि दुल्हन ही उसके लिए सबसे कीमती है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। उसकी ख्वाहिश पर शादी सिर्फ 1 रुपए के सिक्का और एक नारियल के साथ सादगी से मुकम्मल की गई। ये वाकया न सिर्फ खानदान के लिए बल्कि मुआशरे के लिए भी एक सबक बन गया। दूल्हा वकास का ये इक़दाम सोशल मीडिया और अवाम में काफी सराहा जा रहा है। अमले की लापरवाही से विकाराबाद जिला के तांडोर माता शीशो हेल्थ सेंटर में 8 माह की हामला खातून की मौत वाक़ई हुई। पाशापुर तांडा पिडमिल मंडल की समितराबाई जे सिंह की मौत पर लवाहिकीन ने अस्पताल पर इल्जाम लगाया है कि इलाज में ताख़ीर की गई। मुतासिरा खातून सुबह 5 बजे दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंची, मगर डॉक्टरों ने कोई तवज्जो नहीं दी। कहा जा रहा है कि सिर्फ सुबह 9 बजे ही स्टाफ नर्स ने इलाज फराहम किया। इलाज में ताख़ीर की वजह से खातून की हालत बिगड़ गई और वो जानवर ना हो सकी। मकामी अफराद अस्पताल में इमरजेंसी मामलात में मुसलसल लापरवाही पर शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। तेलंगाना के भोंगीर जिला में वाक़ आमिया कृषि विकास केंद्र नामी फार्म में एक आम का वजन 2.854 किलो रिकॉर्ड किया गया। ये आम मकामी किसान जिंटवा बाल रेड्डी ने 5 साल कबल ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए गए RT2 किस्म के पौधों से हासिल किया। उन दरख्तों से अब बाकायदा आमों की भरपूर फसल आ रही है, जिन्हें हर आम तकरीबन 3 किलो वजनी होता है। बाल रेड्डी उन आमों से आमचूर पाउडर तैयार करके फी किलो 600 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। उनके मुताबिक सिर्फ 7 आमों से 1 किलो आमचूर पाउडर तैयार होता है। फार्म पर उन बड़े साइज के आमों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आकर हैरत का इजहार कर रहे हैं। वरंगल का नौजवान मरते हुए भी 6 जाने बचा गया। वरंगल जिला के वर्धनपेट के रिहायशी 25 साला रमना ट्रैक्टर हादसे में शदीद जख्मी हो गए और बाद अज़ां ब्रेन डेड करार दिए गए। रमना के अहले खाना ने अजीम फैसला लेते हुए उनके आज़ा अतिया करने का ऐलान किया। जीओएनदान तेलंगाना के मुताबिक रमना की आंखें, गुर्दे और दिल निकालकर 6 अफराद की जिंदगियां बचाई गईं। ये इक़दाम इंसानी हमदर्दी और जज्ब कुर्बानी की आला मिसाल है। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिला की सरहद पर आंध्रा प्रदेश से आने वाले धान के ट्रकों को रोक दिया गया। नालगंदा पुलिस ने वुडुपली चेक पोस्ट पर 7 लारियों को जब्त किया, जिनमें 2200 बोरी धान मौजूद था। ये धान तेलंगाना में फी क्विंटल बोनस हासिल करने की नीयत से लाया जा रहा था। पुलिस ने मुतल्लिका एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुक्काम ने वाज़े किया है कि दीगर रियासतों से आने वाले धान को तेलंगाना में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने धान स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। कानपुर में सब इंस्पेक्टर पर नशे में खातून को गाड़ी से टिकुर देने का इल्जाम, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर नशे की हालत में खातून को गाड़ी से टुक्कर मारने का संगीन इल्जाम आयद किया गया है। यह वाकया 26 अप्रैल को गातरी मंदिर के करीब पेश आया, जब मुतासिरा खातून पूनम सिंह फूल खरीद रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सब इंस्पेक्टर कमलेश कुमार नशे में थे और हादसे के बाद कोई नदामत जाहिर नहीं की। पूनम के शौहर बलराम सिंह ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर मुल्जिम अफसर को बचाने की कोशिश की और FIR दर्ज करने में ताख़ीर की गई। हादसे में जख्मी होने वाली पूनम सिंह की पीर की सर्जरी पीर के रोज की गई। ACP अभिषेक पांडे ने वाकये की तस्दीक करते हुए बताया कि कमलेश कुमार साउथ जोन से ताल्लुक़ रखते हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि दर्ज की गई FIR में नशे से मुतालिक कोई शक शामिल नहीं है। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवाम में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है और पुलिस के रवैये पर सवालात उठने लगे हैं। तहकीकात जारी हैं।
हंस रहे हो ना? ये देखो भाई नंबर प्लेट भाई, लड़की को भैया वर्दी क्या नाम है? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। ये देखिए ये ऊपर से कह रहा क्या हो गया, ठुक गया तो है। माफिया हो माफिया। टक्कर मार क्या है? टक्कर मार क्या ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो? 4 लोगों को इन्होंने घायल किया है। बोल दिया बस। हम फूल लेके लौट रहे थे, अपनी साइड में आके फुटपाथ पे चल रहे थे और ये अपोजिट साइड में अपनी गाड़ी लेके आया और बहुत तेज स्पीड में इसने मुझे टक्कर मारी। उससे मेरा पैर टूट गया है, मेरी पसलियां टूट गई हैं और बहुत ड्रिंक किए हुए था। वहाँ स्थानीय जनता ने मुझे बचाने की कोशिश की और इसका पीछा किया। इसके बाद जैसे ही हमें सूचना मिली हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और वहां देखा कि इनका पूरा पैर टूट गया था और ये व्यक्ति नशे की हालत में इतनी ज्यादा थी। हम वहां जब तहरीर लेके थाने पहुंचे हैं तो थाने में हीला हवाली की गई हमारे साथ, इसका मेडिकल भी नहीं कराया गया और ये वर्तमान में चौबेपुर थाने में तैनात है और पुलिस ने हमारा कोई ज्यादा सहयोग नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर कानपुर इसको विभागीय कार्रवाई करते हुए इसको सस्पेंड करें, टर्मिनेट करें। यही हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। पहले भी कुछ करता रहा है क्या? पहले भी इसके फेंडर ये पहले हाँ ये चालान इनके रॉन्ग साइड से चलने के और वैसे इनके चालान तेज गति के चलने के कई चालान इनके काटे गए हैं, 6-7 चालान काटे गए हैं और उसमें ये इन्वॉल्व है। इनकी गाड़ी का नंबर वहां से आप सर्च कर सकते हैं RTO और हमारे इलाज में इनके इलाज में। गवा के शरगांव इलाके में श्रीली राई जात्रा मजहबी जुलूस के दौरान भगदड़ मचने से कम अज कम 6 अफराद हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए। वाकये की इत्तला पर पुलिस और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जुलूस के दौरान अचानक भीड़ में घबराहट फैलने से अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने अस्पताल जाकर जख्मियों की इयादत की और मुफ्त इलाज की हिदायत दी। उन्होंने इंतजामिया को हंगामी इक़दामात तेज करने की भी हिदायत जारी की। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से तज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। बैठ